Our next guest is someone who is known across the country for his pan-India appeal and the versatility as an actor. He has worked and continues to work with the best directors and actors in the Indian film industry. From a young romantic hero to a highly successful boxing coach to the life of an aerospace scientist at ISRO, he's given award-winning performances for the past several decades. Ladies and gentlemen, please welcome actor, director, producer, writer, and also an avid biker, C.R. Madhavan. Welcome, Maddie, welcome. So good to see you. How are you doing, buddy? Hey, what are you doing here? Don't do all this too. How are you doing, Anil? So good to see you. All good? Come. Yeah. आइए बैठिए. Maddie, welcome. Sir, thank you, sir. To our show. I'll call you Maddie because, I've never known you by any other name. Right, Maddie, because we've given your introduction as a biker, and one can understand your love for it and how often you go out. A lot of the casualties that are happening are almost, what are the percentage? About 30%. 30%. Yeah, 30%. They are because of, bikers. What do you think, A, is the reason why they happen? And what are the precautions that you feel perhaps we can take or you can guide us into that? Well, thank you, sir. I think I'm going to jump right into it because there are so many people who have so much to say. One of the rules that I heard very earlier on in my life as a biker, and I'd like to share that with all bikers, past, present, and future, is that when you're riding a bike, the first thing that you have to know is that everything and everybody on the road is out to get you. It's not, you don't predict the trajectory of any vehicle or the fact that the dog will not cross you or that car will not hit you or that is too far away. When you're riding a bike, the first thing you have to know is that everything is out to target you. If you ride with that attitude, more often than not, you'll have a much more safer ride while you're using the two-wheeler. The second thing is, when you ride a bike on a two-wheeler on an empty highway, the euphoria is almost meditative. It's just, it's amazing how you're with yourself all the time. But more importantly, you get a lot of time to think about a lot of things. Yeah. But when you're a youngster and you feel the power of the vehicle, as a first-time rider, you tend to try to push the limits all the time. And unfortunately, among the 30% that you talked about, a large portion of that are youngsters. And that is the most, that's the saddest part. So I think to inculcate a sense of responsibility और उनको मतलब डराना भी मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है ताकि लोग सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों की वजह से भी अपना जान खो देते हैं, which is not acceptable. Well, actually, Maddie, you've actually answered most of what we were about to ask next. What are the kind of precautions that you need to take? Our roads have improved, thanks to the Honorable Minister. And as you rightly said, the impulse is that अरे खुली सड़क है चलो इस पे हम छोड़ देंगे अपना पूरा चलेगा गाड़ी. But the very important point that you brought up in the initial stages of your talk was that जब भी आप निकलेंगे बाहर ये आपको मान लेना चाहिए कि भैया सब लोग जो है लगे हैं आपके पीछे. जी. सबसे आप होशियार रहिए. जी. कभी भी कोई क्रॉस कर जाएगा, बैरियर कूद करके आ जाएगा, ये बगल वाला जो है लेन चेंज करने का तो ये सामने से एकदम काट देगा आपको. आपके पीछे सारी चीजें होती हैं. जी. It's a very difficult kind of psychology to live with, but I think that अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो ये आपको सोच के निकलना पड़ेगा कि भैया उधर से गाड़ी आ रही है बहुत दूर है और ये बैरियर के उस तरफ है. मान लीजिए उसका ब्रेक खराब हो गया और बैरियर तोड़ करके हमारी तरफ आ गया तो हमें क्या करना चाहिए हम पहले से सोच के रखें. अमित जी इससे सही मतलब मैं कह रहा हूँ हर एक बाइकर ऐसा ही सोचता है. सब लोग सोचते हैं यार आप बड़े रिग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, दुर्घटनाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या करें. कई बार अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं, अचानक कोई सामने से निकल जाएगा तो कहते हैं कि जो तीसरी लेन है, फर्स्ट लेन जो है वो खुली है, उस पर जाना चाहिए, उस पर आपको थोड़ा सा तेज़ी से निकल सकते हैं. तो मैं उधर जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है वो झाड़ी में से कोई निकलेगा.
वो क्या करेंगे हम? तो हम कहते भैया बीच वाला ही ठीक है, 10 मिनट थोड़ी सी देर पहुंचेंगे। सर ये एक और बात है सर कि 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या होगा सर? आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा, क्या होगा? 10-5 मिनट लेट होंगे ना, लेकिन वही 10-5 मिनट के लिए वो तेज भगा देगा गाड़ी। सो दिस आई लव व्हाट यू हैव सेड कि सब लोग जो है निकले हुए हैं जी कि कैसे इसको ठोकें, बट दैट इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। अगर आप निकले हैं सड़क पे, ये सोच ही निकलिए कि उस साइकिल वाला जो है वो कभी भी मुड़ जाएगा। जी। ये जो झाड़ी से कोई भी निकलेगा, अचानक कुत्ता आ जाएगा सामने, पेड़ के ऊपर जो बिल्ली है वो आपके ऊपर छलांग काला मारेगा, मार देगा। कबूतर आपके सामने ही आ जाएगा, यू नो ये सारी चीजें। अनदर थिंग फॉर पेरेंट्स, यू नो, जो सड़क पे निकलते हैं जी। वो बच्चे को सड़क की तरफ रखते हैं सर, ये गलत बात है। बहुत गलत बात है। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उसको खतरा है। दे शुड वॉक विद द चाइल्ड टुवर्ड्स द पेवमेंट और द अदर साइड ऑफ द रोड एंड देन वी वॉक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कब पता नहीं कब बच्चा हाथ चुड़ा करके आ जाए सामने। जी ये सारी सोचना पड़ता है। लोग कहेंगे सर आप पागल है, इतना कौन सोचता है? आप तो फ्रंट में बैठते हैं भाई, जी। यू आर अ बाइकर। जी आप खुद नोट भी कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम तो आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको किसी की परवाह ही नहीं है ना, दे चले ही चले जा रहे हैं, चले ही चले जा रहे हैं, एक हेलमेट क्या लगा दिया है, जैकेट क्या पहन लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा रूल्स प्रॉब्ली आप लोग फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए रफ्तार से रिश्ता है आपका। जी। तो जब हम मान लीजिए कि हमारे पास बाइकिंग लाइसेंस है, अक्सर ऐसा होता है कि 10-15 साल पहले हमें वो लाइसेंस दिया गया था। उस वक्त जो गाड़ी में हमने लाइसेंस ली थी, उस गाड़ी की जो सीसी है वो शायद 80, 90, 125 सीसी की होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त तो दोनों रेयर व्यू मिरर भी नहीं हुआ करते थे, यू नो, वो भी ज़रूरी नहीं था। और जब आपको वो लाइसेंस मिल गया, अब फिर आपने अपने आप को अपग्रेड किया गाड़ियों में, 100 सीसी से लेकर आप 1000 सीसी चले गए, 2000, मेरे पास 2500 सीसी की बाइक है। फिर वो ना, वो आप बाइक नहीं चला रहे हो, आप एक भूत, एक हैवान को चला रहे हो, और उसको चलाने का तरीका, उसका जो कल्चर है, उसका जो वेट टू यू नो स्पीड प्रोपोर्शन है, सब कुछ जो है वो बदल जाता है। और उसको ना लोग खरीद लेते हैं अपना लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, जो हेवियर व्हीकल्स के लिए जो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि वो एक कोर्स ऐड कर देना चाहिए कि अगर आपको ये बाइक ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ 150 सीसी की बाइक है, तो आपको एक और रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये 1000 सीसी वाली बाइक को कैसा चलाया जाता है। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। जी। वो सरकार का एक यंत्र है, फाउंडेशंस हैं विच आर टॉक। आई एम आस्किंग यू वेरी सीरियसली एज बाइकर्स, द मोमेंट यू गो अबव से 350 cc or 500 cc, जी। you think that the vehicle seller themselves should insist that you give us an upgrade? You go to the RTO, get an upgrade, Yes, that I you are have many qualified to such ride something suggestions. heavier than 500 cc. Anand, I have many such suggestions that I have to be implemented because it's the same thing with the cars. और चक्कर क्या है कि आप अपनी जान को खतरे में डालो चलता है, पर आपकी वजह से किसी चंद लोगों की जान खतरे में चले जाए, इट्स इम्पॉसिबल। तो वी हैव टू गेट दैट अपग्रेड यू नो सर्टिफिकेट बिफोर यू गिव देम अ पावरफुल बाइक। दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों को ना बाइकर वालों से भी नफरत है, क्योंकि एक तो हम जैसे सर कह रहे फटपटिया तो दूर की बात है, आजकल के बाइक में वुम वुम करके रात को 3 बजे आप चलाते हो इररिस्पॉन्सिबली आवाज़ रेस करके। और सबसे ज़्यादा नफरत बाइकरों से तब होती है जब आप बॉम्बे के ट्रैफिक में मान लीजिए आप बैठे हो, आपको पता है कि यार सिग्नल निकलने वाला है, अभी हम अटके हुए, हमारी गाड़ियाँ ऐसे वैसे नहीं जा सकती, आपका घर नज़र आ रहा है, आपको जल्दी से बाथरूम जाना है, पर आप नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बाइकर क्या करते हैं ना, आपके सामने रूल्स तोड़ते हुए आपसे आगे निकल जाते हैं, और इससे लोगों को बहुत इरिटेशन होता है, नफरत होता है। उनको लगता है कि ये कौन से मतलब एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं कि ऐसे जा पाएँ। तो ये जो वीविंग बिटवीन द ट्रैफिक होता है, और ये करते वक्त सबसे खतरनाक चीज बाइकर के लिए ये होता है कि आपको पता नहीं है कौन सा कार दरवाजा अचानक खुल जाए। ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट उसमें होता है कि अचानक किसी ने कार का दरवाजा खोल दिया, आप बैठ गए उसमें, गाड़ी वाले को भी चोट, आपको भी चोट, और फिर वहां पे पूरा ट्रैफिक जैम। तो कभी कभी बाइकर भी इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं कि जो लोगों की नफरत हमारी और देखने को मिलता है वो जायज। किसी का गुस्सा किसी और पे कभी कभी निकल जाता है। ऐसा है कि 2 दिन पहले यहाँ से ऐसे निकला था बाइकर, आज यहाँ मुझे हाईवे पे मिला, छोड़ेगी नहीं। हाँ, तो वो भी हो सकता है। और हमारे देश में एक रूल है कि जो गाड़ी बड़ी है उसकी गलती है ना? तो नहीं सर, गाड़ी वाला ही गलत है। हाँ, गाड़ी वाला, मतलब अगर सर 2 गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो जो महंगी गाड़ी है, जो बड़ी गाड़ी है, उसकी गलती। उसकी गलती।